INC. Mr. Ashish Sharma, whom you just saw in the titular role, is the founder and lead strategic of Rachayita Films Private Limited. Besides acting in, producing and writing Khejri, he has also received critical acclaim for portraying the character of Prime Minister Narendra Modi in a web series named Modi, Journey of a Common Man. Mrs. Archana Taide Sharma is also the founder and the creative director of Rachayita Films Private Limited. Besides writing Khejri, she has acted in TV shows like Kabool Hai, Santoshi Ma, and is currently working in an upcoming mega serial Aprajita. Lalit Mohan, who has also agreed to join us on stage, is the founder and financial head of Rachayita Films. He is also one of the producers of Khejri. Their session will be moderated by our beloved professor, Dr. Vishnupriya Pandey. I would now like to thank our guests on stage and request Professor Sangeeta Pranavendra, Course Director of English Journalism and Convener of IIMCFF 2022, to felicitate Ashish Sir and Archana Ma'am with a hand-drawn portrait and memento of the festival. Thank you, Mrs. Archana Daide Sharma, for accepting our token of gratitude and love. Up next, I would like to request Course Director English Journalism, Professor Sangeeta Pranavendra, to hand over the portrait to Mr. Ashish Sharma, and to Professor Vishnupriya Pandey to hand over the memento. Thank you, sir. I would now like to request Professor Vishnupriya Pandey, the moderator of the session, to felicitate Lalit Mohan Sir with a memento of the event. Sir, please accept our memento as a token of appreciation. Before we start our discussion on the film with our guests, we would like to hand over the mic to Vishnupriya ma'am. Over to you, ma'am, and thank you. Thank you very much. Is it working properly? So, a very good evening to one and all present here. What a terrific performance by our actor Ashish Sharma. A huge round of applause. It's great watching him on screen. And let me tell you one thing, that I have heard that a good movie, a good cinema should make you forget that you are sitting in a theater. That exactly happened with me. I forgot that I'm sitting. When they people came, I was looking at them कि क्यों disturb कर रहे हैं आके बीच में. I was watching that movie. I'm speechless. And you know, for last, yeah, of course you should clap again and again and again. It was a wonderful experience watching this Khejri. And you know, for last 2 days we have been this is the second day of this IIMC Film Festival, and
we have been not only watching and participating in discussions, but we have been just learning, exploring, and enjoying each and every second of this IIMC Film Festival. A huge round of applause for this festival too. Our convener is sitting here, our DG sir, and everyone, and the whole team, and you students who have been part of this. And देखिए, ये फिल्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कहें कि वो कहते हैं ना कि जैसे इस तरह की फिल्म को देखने के बाद मन में क्या आता है। आशीष जी से बात शुरू करने से पहले, अर्चना जी और ललित जी से बात शुरू करने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सालों पहले फिल्म के बारे में जो सोचा था कि इसमें राग है, राग रंग संग है, उत्साह और उमंग है, साज और तरंग है त्याग और तृप्ति, यह है गहन कल्पनाओं की सहज अभिव्यक्ति, इसमें बूंद, इसमें सरिता, इसमें छंद, इसमें कविता, ये गीत, ये गजल, ये कठोर, ये सरल झूमती बहार है, ये प्रेम का उद्गार, कोई पूछे ये है कौन, कहना शब्द और मौन, काल की है दृष्टि, ये है पूरी सृष्टि, और ये सृष्टि गढ़ते हैं ये लोग, ये प्रोड्यूसर्स, ये एक्टर्स, ये सृष्टि गढ़ते हैं। दिस इज एमैल्गमेशन ऑफ all the art forms, all the performing art forms। और ये जो खेजड़ी जैसी फिल्म है, ये हमारे राग विराग, त्याग और तृप्ति को भावनाओं के पगडंडी पर मोड़ती है, और हमें अपने ये जो भाव है ना, हमें अपने गीतों, छंदों और अंतर्द्वंदों से जोड़ती है। खेजड़ी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो आशीष जी, मैं सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन वेरी वेरी usual question, that after that Rang Rasiya and Siya Ke Ram and that Modi and young Modi, I must say, and after all those roles, after all those Chandragupta Maurya, और उसके बाद what motivated you, what inspired you, what made you do this terrific role and this terrific film as a producer? This was right after Siya Ke Ram, and we were, as a company, we were trying and thinking of producing films for a really long time before that, and कहानी नहीं मिल रही थी कोई। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कोई अच्छी कहानी हो जिसको हम बहुत तबीयत से, शिद्दत से कहना चाहते हैं, और चूंकि हम कमर्शियल फिल्म मेकर्स हैं नहीं और शायद तबीयत से कभी बन भी नहीं पाएंगे, so we were looking for stories that we really want to tell and that really need, which deserve to come out, and we wanted to tell a global story first of all। ऐसी कहानी जो हिंदुस्तानी, भारतीय हो, भारतीय जड़ों से जुड़ी हो, जिसको हम विदेश के पर्दे पर ले जा सकें, ग्लोबली जिसको हम दिखा सकें। और उसी दरमियान मेरे पिताजी जो गानों के लिरिसिस्ट भी हैं, अश्विनी शर्मा, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कहीं पढ़ी थी जिसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। उस कहानी का नाम था संझा, जो मिस किरण सिंह ने लिखी हैं, जो लखनऊ की एक लेखिका हैं और टीचर हैं और शौकिया लिखती हैं। उनकी कहानी कहीं छपी थी तो पापा ने पढ़ी और उन्होंने मुझे दी कि देखो बड़ी अच्छी कहानी है, तुम पढ़ो। मैंने पढ़ी, मेरे जहन में रह गई। फिर जब हमारी शादी हुई तो मैंने अर्चना को वो कहानी दी, इनके भी जहन में रह गई। तो हमारे जहन में वो कहानी बहुत ज़माने तक चलती रही। और फिर जब फाइनली मौका आया कि हम इस पोजीशन में थे कि हम एक फ़िल्म बनानी है और कौन सी बनानी है, तो पहली चीज़ जो अर्चना ने कही वो ये थी कि अगर हमें पहली फिल्म बनानी चाहिए और तुम्हें कोई पहला फिल्मी किरदार करना चाहिए तो वो ये होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड। मोटिवेशन की बात जो आप कर रही हैं, मोटिवेशन से ज़्यादा मैं डरा हुआ था जब ये मुझे करना था। लग नहीं रहा था? हाँ, वो सब पहले की बातें और मैंने एक्चुअली ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो कि कुछ 6-8 महीने का था, आई थिंक फर्स्ट मंथ के सेकेंड वीक में मैंने छोड़ दिया था। एंड आई वाज क्राइंग सिटिंग ऑन माई काउच टेलिंग हर एंड माई एक्टिंग टीचर हु हैपेंस टू प्ले माई फादर इन द फिल्म एज वेल, मिस्टर यशराज यादव, हु इज़ अ फैकल्टी इन NSD राइट नाउ ऑफ एक्टिंग, जो मेरे टीचर हैं और वो वर्कशॉप्स कर रहे थे मेरे साथ। मैं काउच पर बैठकर बहुत रोया और मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपने नाम ली इसके पहले, रंग रसिया, सिया के राम, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो एक जर्नी थी इतने सालों की,
तो सीखने से ज़्यादा अनलर्निंग इज़ वेरी डिफिकल्ट इन लाइफ एंड आई हैड टू अनलर्न एवरीथिंग, every single basic I had known of acting or storytelling ever, because while writing also we struggled a lot. So motivation ज़्यादा डरा हुआ था उस समय, और वहाँ से सारी कहानी शुरू हुई तो थी. देखिए, डर से भी इतना अच्छा प्रोडक्शन निकल के आता है. इस डर को सलाम है भाई, जब डर के इतना अच्छा काम करते हैं आप, तो बहुत ही बढ़िया. और देखिए, वी हैव विद अस better half of Ashish ji, and I must say that she is a diva, and she is not only an actor but also screenwriter, as well as she is also the producer, creative producer of this film. So I just want to know from you, your journey, how you have prepared, what came into your mind, how it started. जैसे आशीष ने अभी बताया कि हमारे पास जब ये शॉर्ट फिल्म आई थी, तो जब मैंने वो शॉर्ट फिल्म पढ़ी तो काफ़ी दिनों तक कहानी मेरे जहन में थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, दिस इज़ द स्टोरी दैट वी नीड टू से. अगर हम बाहर आ रहे हैं एज प्रोड्यूसर्स, एंड इफ़ वी आर ट्राइंग टू से दैट वी आर फिल्म मेकर्स, वी आर स्टोरी टेलर्स, सो आर स्टोरी, our first story rather should touch each and everyone's heart. It is very important. और मुझे लगा ये शॉर्ट स्टोरी की कहानी में बहुत पोटेंशियल है, एंड आई टोल्ड हिम ये पहली कहानी है, इसी को करना होगा. एंड आई कॉल्ड मामा जी ऑल्सो. मामा जी ने बोला मैं पैसे दे दूंगा, सब हो गया. सो व्हाट हैपेंड इज आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च. मैंने कहा कि नहीं चलो ये कहानी करेंगे, और मैंने जस्ट डायल में आई जस्ट लुकड आउट फॉर अ ट्रांसजेंडर इंस्टीट्यूट्स कि मैं कहाँ, फाउंडेशंस की मैं कहाँ पे बात कर सकती हूँ. और मुझे खुद को इतनी समझ नहीं थी उस वक्त. आई जस्ट कॉल्ड अप एंड आई सेड कि आई एम राइटिंग अ फिल्म ऑन यूनक्स, एंड मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. और जो सामने फ़ोन पे थे, आई थिंक वो ऑफेंड हो गए. उन्होंने कहा पहली बात तो अगर आप कुछ कहानी लिखना चाह रहे हैं, सो देर आर डिफरेंट, इट्स अ वेरी बिग अम्ब्रेला, डू नॉट कॉल अस यूनक्स, द अम्ब्रेला इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर. पहले अपना रिसर्च कीजिए फिर कॉल कीजिएगा. सो आई वॉज लाइक ओ गॉड, मुझसे कुछ गलती हो गई. दैट्स वॉज माई रियलाइजेशन that before writing the story we need to do a research, we need to understand, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जो घर में रेगुलर बातों में नहीं होता है. पीपल, फैमिलीज, पेरेंट्स डू नॉट टॉक अबाउट इट. सेम हैपेंड इन माई फैमिली ऑल्सो. द टॉपिक वॉज नेवर डिस्कस्ड, सो आई हैड नो नॉलेज अबाउट इट. देन I did my research. That took the maximum time, and I understood each and every detail about it, and I was like, oh God, अच्छा हो गया हमने लिखना पहले शुरू नहीं किया, because हम बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी फिल्म लिखते. So that happened, and then while doing my research and while writing the first draft, I realized कि हमने ट्रांसजेंडर्स को एक पर्टिकुलर लाइट में ही देखा है, जो हमें फिल्मों ने दिखाया गया है, जो हमें सिग्नल पे जो ट्रांसजेंडर्स दिखाई देते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, वही हमें पता है, क्योंकि वही हमारी एक रियलिटी है जो हमने देखी है, एक्सपीरियंस की है. दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि यहाँ उन्हें जो कहा जाता है, यार आप ताली बजाकर आप पैसे मांगिए, इस तरह से ही बात कीजिए, इस तरह से ही बोलिए, ये भी उन्हें सिखाया जाता है. पर जब मेरी खेजड़ी जो है, जब बचपन से पैदा हुई है, उसे सिर्फ ये बोला गया है कि तुम लड़की हो, तो उसे तो पता ही नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है. तो ऑब्वियसली उसके हाव भाव में उसकी बॉडी लैंग्वेज विल बी मोर ऑफ अ गर्ल एंड नॉट ऑफ अ ट्रांसजेंडर, द ट्रांसजेंडर दैट वी नो, वी हैव सीन, जो हमें बताया गया है. एंड while taking the film to various festivals as well, we have gone to a lot of festivals and we have met a lot of transgenders. They do not behave, what we have been experiencing on signals, मतलब वैसे नहीं होते. They are human beings at the end of the day. And that motivated me more to write the film with more as a human story. It's not a story of a transgender, it is not a story of a boy, it is not a story of a father, it is a story of a human being who is trying to find her place in society. And who are we to judge them? Who are we to decide their fate? मतलब हम जब शूट भी कर रहे थे, so we were shooting in शद्दार शहर, और वहाँ पे भी एक अलग से उनकी एक बस्ती कहा जाएगा कि वो रहते भी हैं गांव के बाहर. भाई क्यों?
who are we? Because it's just because I have been born as a woman, somebody else is born as a man, and that other person is born as a transgender. Who gives the man and the woman the right, you know, to decide how a transgender person will live? We are not supposed to do that. That's what my film also tries to say. You know, the father is trying to save his child from the society where we have made rules, but who are we to make those rules? So yes, the writing process took a lot of time. It took almost 2 years to write because we wanted the story, the heart to be correct, you know, because when people see the film, people should go back and think about, you know, हम तो हमारी लाइफ बड़े अच्छे से जी लेते हैं, but किसी और की लाइफ हमने सोची हुई है by rules and regulations, how do they live? वंडरफुल। तो अभी अर्चना जी ने यही हमें समझाने की कोशिश की कि जो ख़ता हमने की ही नहीं, क्यों उसकी माफ़ी नहीं है? क्या सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है? क्या ज़रूरत है मर्द या औरत के ही हम दायरे में बांधें? Wonderful. And now again I'll come to, before going to talk about finance and all, to Lalit ji, I just want to ask Ashish ji, what kind of preparation you did? You know, it's not about only physical preparation, it's about psychological preparation you did before doing this, you know, outstanding spellbinding role. फिर वहीं से पकानी शुरू हो जाती है मेरे डर से। See, for everything that I have done earlier or for everything that I might do in future, I will always have a reference point to start with, because either I have lived those emotions, lived that thought process, or I have seen somebody else live it, somebody else talk about it. कहीं ना कहीं मेरे परिवेश में, कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग में, कहीं ना कहीं मेरे आसपास दोस्तों में, यारों में, कहानियों में, किस्सों में, मैंने कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ जानकारी मेरे जहन में है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी मेरे पास, तो आई हैड नो रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट विद, और वही सबसे बड़ी दिक्कत थी और वही सबसे बड़ी सरलता भी बन गई, क्योंकि जैसा कि अभी अर्चना ने कहा कि हमारी कहानी का जो कोर है वो किसी भी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और हमने उसको बहुत ही एक बेसिक सिंपल थॉट से लिखा था कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू फिट इन। हम अपने ज़िंदगी के हर पड़ाव में फिट इन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, कभी दोस्तों में, कभी घर में, कभी सिबलिंग्स के बीच में, स्कूल में, बाहर, काम में, हम हमेशा मरते दम तक फिट इन करने की कोशिश करते रहते हैं, और उस पूरी जद्दोजहद में हम हमारी अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, हम कौन हैं, और हम वो बनते चले जाते हैं जो हमें लोगों का परसेप्शन बनाता चला जाता है, जो लोग हमें जैसे देखना चाहते हैं हम वैसे बन जाते हैं, हम कौन हैं हम वो भूल जाते हैं। और यही पूरी हमारी कहानी की आत्मा है, उसका कोर थ्रेड यही है कि जब आप अपनी रियलिटी में जीने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको नहीं जीने देते हैं, और आपकी सारी लड़ाई वही है कि मैं अपनी जगह बना पाऊँ समाज में। So that was the only reference point I took, and that was the only preparation that I did. Post that, the psychological transformation that we talk about is, yes, very very important, was very difficult because अपने आप को उस पॉइंट पे लेकर जाना जहां मैं ये समझूं कि मैंने 18 साल एक ऐसा जीवन जिया है जिसके बारे में मुझे सब पता है लेकिन कुछ नहीं पता है, तो वो अनलर्निंग करना और उस पॉइंट तक लेके जाना, इट टुक मी अबाउट 4-5 months, और बहुत एक्सटेंसिव वो उसका प्रिपरेशन था। I had to cut myself off completely from everything. I had to stop, and I might say I stopped sleeping in the same room as her for about a month or so, and like me and Jashraj sir, usually what happens is that क्योंकि वो 18 साल एक घर में उस 4 दीवारों में पली बड़ी है, so that house is also a character in the film, and that house has also grown with the girl. So आप देखेंगे कि जब वो बच्ची के टाइम पे घर है वो बदलता है धीरे धीरे, जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो वो घर भी बदलता है उस बच्ची के साथ, और वो बच्ची के ही स्वभाव के साथ घर ढल जाता है 18 साल में। तो मी एंड यशराज सर हैड टू एक्चुअली वी वेंट देयर अ वीक प्रायर, एंड हमने जो सेट बनाया था, जो घर हमने बनाया था, वी स्टेड देयर फॉर अ वीक। तो हम वहीं सोते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, और हमारे सारे रिहर्सल्स भी हम वहीं करते थे। एंड एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब बहुत ज़बरदस्त ठंड थी उस समय, और वहीं रहते थे। एंड सो
ऑब्वियसली व्हेन यू आर दैट प्रिपेयर्ड एंड अगर आप उतना मेहनत उसके पीछे पहले कर लें तो फिर आपको ऐसा लगता है पर्दे पर सब कुछ सरल हो जाता है. सो देन इट एक्चुअली बिकम्स वेरी इजी बिकॉज देन यू आर परफॉर्मिंग, you just have to be in the moment and do not think about anything else. So I had to come to a point where usually हम जब देखते हैं ना इस तरह के किरदार फिल्मों में, वो बड़े कैरिकेचरिश किरदार होते हैं. वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसा इसने बताया कि हमको एक ढांचा